भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गुजरात में श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में प्रदेश और देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री केशव भाई नाकरानी को अपना प्रत्याशी फिर से बना करके आपके बीच भेजा। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र भाई मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केशव भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केशव भाई तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की वंदे मातरम। આભાર મહેન્દ્રસિંહજી। આપણી વચ્ચે આપણા ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી અને યોગીજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા હોય, સૌ પ્રથમ તેમનું સ્વાગત। ત્યારબાદ भगवा लहराएंगे दुनिया में फिर से हम। पक्की बात है। ગોપીનાથજી દેવ ટ્રસ્ટના ચેરમેન સ્વામી અર્જુન સ્વામી ગોપીનાથ દેવજીનો પ્રસાદીનો હાર લાવ્યા હોય તેમને હાર પહેરાવી અને તેમનું સ્વાગત કરશે। આભાર। માનની આપણા ઉમેદવારશ્રીને વિનંતી કરું કેશુભાઈ નાકરાણી સાહેબને કે આપને આ સભાને સંબોધન કરે। માનની કેશુભાઈ ગારિયાધાર વિધાનસભાની ચૂંટણીની મિટિંગમાં સભામાં ઉપસ્થિત આપણા ઉત્તર પ્રદેશના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી પરમ વંદની પરમ સંતજી એવા યોગીજી બાપુ, બિરલા ટેમ્પલના ચેરમેન અર્જુનદાસજી સ્વામીજી, પ્રવીણભાઈ, કેતનભાઈ, ધવલભાઈ, બધા જ મંચસ્થ તમામ મહાનુભાવો અને સમગ્ર વિસ્તારમાંથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પધારેલા સૌ કાર્યકર્તા મિત્રો, બહેનો, વડીલો, યુવાનો અને બધા જ બાળકો, વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં તમે બધાએ ખૂબ સહકાર આપ્યો છે કાયમને માટે અને આ 6ઠી વાર ને 7મી વાર તમે પણ વિજય બનાવવાના છે એની પણ ખાતરી છે। 6 વાર ચૂંટાવવું એટલે બહુ અઘરી વાત છે, પણ એ તમારા બધાના આશીર્વાદથી હું 6 વાર ચૂંટાણો છું અને 7મી વાર પણ તો તમે ચૂંટીને મોકલવાના છો એ નક્કી થઈ ગયું, આજ નક્કી થઈ ગયું છે। માંડેસિંહ ઘણી વાત કરી કે પૈસાની રેલમ સેલ છે, તો જો પૈસાથી ચૂંટણી લડાતી હોય તો આ દેશના વડાપ્રધાન મુકેશ અંબાણી જ હોય અને તમે બધા જેસર વટીને ખૂબ મધ્યમ વર્ગના આ બધા આગેવાનો છે, પણ કોઈ લોભ લાલચમાં આવ્યા વગર ભારતીય જનતા પક્ષને સંપૂર્ણ ટેકો આપ્યો છે અને સંપૂર્ણ સ્વીકાર્યો છે અને મારું પણ એટલું માન સન્માન આવ્યું છે, ગારિયાધાર હોય, જેસર હોય કે મહુવા હોય, એટલે હું તમારો કાયમી માટે ઋણી છું અને મારી સૌને વિનંતી છે કે 1લી તારીખે પૂરેપૂરું મતદાન થાય। એ ખૂબ કાળજી લેવાની જરૂર છે। સરકારે ખૂબ કામ કર્યા છે, વીજળી હોય, પાણી હોય, રસ્તા હોય, આરોગ્યની સુવિધા હોય, શિક્ષણની સુવિધા હોય, આ તમામ ક્ષેત્રે સરકારે તમે જેટલું માગ્યું એટલું આપ્યું છે અને હજી આવતા દિવસોમાં તમારી જે મુશ્કેલી છે, જે પ્રશ્નો છે એને આપણે બધા સાથે મળીને ઉકેલશું અને એ તો જ આપણે ભેગા થઈને કામ કરશું તો આપણે વિસ્તારનો વિકાસ થવાનો છે અને હજી ઘણું કામ પણ કરવાનું બાકી છે આપણે બધાને। એટલે વધારે આપણે યોગીજીને સાંભળવાના છે। એટલે મારે તમામ આગેવાનો, કાર્યકર્તા મિત્રોની વિનંતી છે કે તમે 6 વાર ચૂંટીને મને મોકલ્યો છો અને 7મી વાર પણ મોકલવાના છો। એ હું આ તમામ ક્ષેત્રે આપ સૌનો ઋણી છું અને આપ સૌ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં એ પધાર્યા છે, બદલ આપ સૌનો આભાર પણ માનું છું। અસ્તુ વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય।
मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने विनंती करी कि आ सभाने संबोधन एक बार जय श्री गारियाधार भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री केशव भाई नाकरानी जी, गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष से महेंद्र सिंह जी, संत स्वामी धनसुख बापू जी, स्वामी हरजीवन दास जी, प्रफुल्ल भाई, केतन भाई, आते भाई और भारी संख्या में गरियाधार विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, पूज्य संतों और सूरवीरों की इस धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गुजरात की धरती बड़ी महान धरती है। उत्तर प्रदेश में जन्मे भगवान कृष्ण कन्हैया इस धरती पर आकर के द्वारिकाधीश हो गए। उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या के पास छपिया में जन्मे भगवान स्वामीनारायण गुजरात में आस्था के प्रतीक बनकर के छा गए। गुजरात की धरती ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिया, जिन्होंने देश की आजादी को नेतृत्व देते हुए ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। गुजरात की धरती ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया, जिन्होंने भारत के एकीकरण में अपने लौह हस्त से पूरे भारत के एकीकरण का बीड़ा अपने हाथों में लिया और वर्तमान भारत को बनाने में अपना योगदान दिया। और गुजरात की धरती को इस सौभाग्य प्राप्त है कि आज भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात की माटी में भारत को दिया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर अपनी एक नई चमक के साथ आगे बढ़ रहा है। यह देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव में भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में भारत की विरासत को सम्मान मिल रहा है। भारत के सूरवीरों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, अमर बलिदानियों का जहां स्मरण हो रहा है, वहीं वैश्विक मंच पर भारत एक नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत का दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक नए भारत का आभास हम सबको कराता है। और भाइयों बहनों, अगले 1 वर्ष तक दुनिया के वे बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो भारत की सीमाएं भी सुरक्षित हुई है। आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देख नहीं सकता, भारत की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, भारत के अंदर आतंकवाद नहीं भड़का सकता, भारत के अंदर निर्दोष नागरिकों की हत्या नहीं कर सकता है। अन्यथा जब मर्जी आती तब भारत के अंदर विस्फोट होते थे,
कभी राम मंदिर पर हमला होता था, कभी काशी पे हमला होता था, कभी गांधीनगर में स्वामीनारायण मंदिर पर हमला होता था, कहीं कभी किसी अन्य स्थान पर हमला होता था। कोई क्षेत्र छूता नहीं था। कहीं मुंबई पे होता था, कभी दिल्ली की संसद पे होता था। नरेंद्र भाई मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के, गुजरात में कर्फ्यू हमेशा के लिए समाप्त हो गया, दंगे हमेशा के लिए समाप्त हो गए। देश के प्रधानमंत्री बने, आतंकी हमले समाप्त हो गए। आज एक सुरक्षित भारत की परिकल्पना को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और यही नहीं, आस्था का भी सम्मान हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। 500 वर्षों से इंतजार था अयोध्या में राम मंदिर का। जय श्री राम। आज भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगले वर्ष 2023 में जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में, भगवान राम का भव्य मंदिर भारत के राष्ट्र मंदिर के गौरव का प्रतीक। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है। उज्जैन में महाल काल का महालोक बनकर के तैयार हो गया है। उत्तराखंड में केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम संवर रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य जोर शोर से चल रहा है। माता अंबा का धाम फिर से सुशोभित हो रहा है और द्वारिका धाम भी अब संवर रहा है, सज रहा है। यही तो नया भारत है। आस्था का भी सम्मान, हर नागरिक को सुरक्षा का एहसास, हर नागरिक के जीवन में सम्मान का भाव, किसानों को किसान सम्मान निधि मिलना, नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिलना, हर घर नल की योजना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, कोरोना कालखंड में बिना भेदभाव के हर को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। आप सब मेरी बात से सहमत हैं? आप सब इस बात को मानते हैं? आप इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही सुरक्षा देगी? भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और देगी भी। भारतीय जनता पार्टी ने समृद्धि लाई है और समृद्धि लाएगी भी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गुजरात में श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में प्रदेश और देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री केशव भाई नाकरानी को अपना प्रत्याशी फिर से बना करके आपके बीच भेजा है। सो आप बधा, भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। સૌને અભિનંદન ઝીલવા માટે આપણે વિનંતી છે। योगी जी जिंदाबाद। जो राम मस्जिद के पास दबा बैठा था और राम ऊपर आ गया था, कौन लेकर आया उसे? वही बनाए जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मंदिर देखा गोरखनाथ का और उस गोरखनाथ के
के मंदिर में योगी जी की तस्वीरें लगी हैं। दुनिया में पहला नेता ऐसा होगा जिसकी तस्वीर मंदिर के अंदर लगी होगी। साहब ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। अरे कोई अपने धर्म की बात करता है तो बोलता है बहुत कट्टर है, देखो कितना अच्छा काम करते हैं। और हम थोड़ा सा भी बोल दें तो बोलते हैं ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। नो साहब, नो। दुनिया कहती है हिंदू जात सो रहा है, आके देखो फरीदाबाद में कौन सा सो रहा है यार। बोले हिंदू एक नहीं है, अरे आके देखो कौन सा एक नहीं है। अगर तैयारी तुम कर रहे हो तो तैयारी हम भी कर रहे हैं साहब। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम तो, बस इसीलिए हम तो, एक हाथ उठा जरा भरोसे का, बोलो इसीलिए हम तो, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। योगी ही आए हैं, योगी ही आएंगे। संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। दुनिया में काशी जाके आना 6.5 किलोमीटर दूर गंगा जी थी, 6.5 किलोमीटर दूर।